यस एवरीवन, आगे सभी लोग गुड मॉर्निंग बेटा. टुडे वी विल डिस्कस the most important subject as far as the consider in PSU examination, GATE examination, IS examination, every result. ठीक है? Am I audible to everyone? Yes, everyone. Please reply. Okay. So today we are discuss about the electromagnetic. Okay. In fourth semester in RTM Nagpur University, this subject is covered, and it is most important subject as far as the electronics branch is considered. Okay, so the maximum weightage of this subject in GATE examination is near about 8 to 10 marks. Okay, there may be 1 mark objective or 2 marks, some numerical types of question are there. Clear? So in this complete subject, what is the most important is what? The coordinate system. First, we will discuss about the vector algebra. Clear? After vector algebra, we have the coordinate system, that is Cartesian coordinate system, cylindrical coordinate system, and spherical coordinate system. Okay, and after that, we jump to electrostatic field, then magnetostatic field, and the combination of these two fields. Clear? That is, combination of electric field and magnetic field will result into Maxwell equation. And after discussing the Maxwell equation, okay, uh, we have the some wave propagation concept. Okay, so let us start with vector algebra. Okay, so everyone know what is vector. Vector is at magnitude as well as the direction. Okay, so here I am representing that in blue color. That is what a vector A. Okay, in that vector A, you will see a red color, that is called a small letter A. That A indicates the unit vector. Okay, now the main question arises in front of us: what do you mean by unit vector? A unit vector is what? Its magnitude should be 1, and it shows the direction. It indicates the direction of particular vector. Okay, and that unit vector may be calculated as the magnitude of, that is what, the last equation, vector A cap is equal to what? Magnitude of A upon its, sorry, the vector representation of vector upon its magnitude. Okay, if we consider a vector A is equal to xax plus yay plus zaz. Now what do you mean by xax? A vector x, okay, with its magnitude and its direction. Okay, here you will see the unit vector x, unit vector y, and unit vector z. Okay, so that is what a vector. Okay, and the magnitude of this vector is what? We will consider square of each coefficient, that is what? A is ax square plus ay square plus az square. It represents the magnitude, and the unit vector is what? Vector upon its magnitude. Getting? This is what the basic concept about a vector. So if we consider a two vector, okay, let it be vector A and vector B, and depending on these two vectors, we will discuss some properties related with the vector. Okay, so initially we have two vectors. Vector A is equal to what? Xax plus yay plus zaz, and we will also consider the vector B is what? Xbx plus yby plus z. Someone also represents as bax plus bay plus baz. Likewise, you can consider your own assumptions. Okay, so the first property is what? Cumulative property. If we consider the addition of these two vectors, suppose C is what? One resultant vector. Here we will get a resultant vector. That resultant vector is what? Addition of these two vectors, that is vector A plus vector B. It can also be written as vector B plus vector A. Okay, so this is what the cumulative property. And that cumulative property can also be considered as by using the law of parallelogram and a triangle law, or head to tail rule also we can discuss. That head to tail rule is also called as a triangle law. Okay, now if we consider a vector A like this and vector B will be like this,
So the resultant of these two vector, clear, that is called as vector C is what? Vector A plus vector B. That is what? Addition of two vector, or we can also call it as cumulative property. Okay. Then the most important concept related is the vector. That is what? Position and distance vector. Now, first we will discuss what do you mean by position and what do you mean by distance. Now, position means what? Consider a point P1. In the diagram, you will see a point P1. That point P1 will be represented as by point x1, y1, z1, and point P2 will be represented as x2, y2, z2. And these 2 points are considered to be in space. हम इसको कहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं? स्पेस के अंदर कंसिडर कर रहे हैं. सो ये होने के बाद में क्या रहेगा कि हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P1 फ्रॉम पॉइंट P2 और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P2 फ्रॉम P1. क्लियर? तो if we consider a point P1, then we can't directly jump to point P1 or not jump to point P2. Initially, we need to start with the origin. Clear? So first of all, we need to start with the origin. Okay. So origin what? We consider origin with its point is what? 0, 0, 0. So the distance of point P1 from the origin is what? Let it be considered as the R1. Okay. Now R1, we need to find the value of R1. So it should, and its P1 के coordinate कौन से हमारे पास? x1, y1, z1. Okay. So it will be calculated as x1 minus 0 ax plus y1 minus 0 ay plus z1 minus 0 az. Okay. These are what? The distance of point P, or we can consider as a R1 as a vector. Now, at the same time, we need to find the vector R2. That is what? Distance of point P2 from the origin. Okay. So what will be represented as x2 ax plus y2 ay plus z2 az. Okay. Now, position means what? If we consider a xy plane, simply xy plane, and in that xy plane, what we consider? The projection of point P. What indicate? The projection of point P1 on xy plane. अगर हम इस पॉइंट P को कंसिडर करते, दैट पॉइंट, इसका अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे, ठीक है, तो इसका ये क्या मिलेगा हमें? इट विल बी consider as situated on xy plane. Okay, that time your z coordinate will be 0. Okay, and if we consider or if we see the point P2 or P1 from x-axis, okay, then that point P1 or P2 will be appear as a located on zy plane. Similarly, on if we see that point P1 or P2 from y-axis, we assume to be that point P1 or P2 are located on zx plane, like this. Okay? So according to distance formula, we need to find the distance of point P1 from P2 or P2 from P1, and it will be considered as a resultant of vector R1 and R2. Okay, so vector R12 is what? By using distance formula, we consider as x2 minus x1 ax plus y2 minus y1 ay plus z2 minus z1 az. Okay, this is what my distance vector. What we can consider a distance vector. Okay, so distance of point P 1 from P2 is what? We consider under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. That is what? A position and distance vector. Okay. Now, multiplication of two vectors. If we consider a vector A and vector B separated by some angle theta,
Clear? At such condition, we need to find the angle between them as well as its magnitude. That concept is called as dot product or vector multiplication. Clear? Or we can also call it as a scalar product. Scalar product means what? It gives only a magnitude, not a direction. Direction हमें कहाँ पे मिलेगी? In vector product or cross product में. Clear? So here we consider a vector A and vector B. So the angle between them is what? Cos inverse of vector A into vector B upon magnitude of vector A and magnitude of vector B. Clear? And if we consider the dot product of its unit vector means what? Ax, Ay, Az. Clear? So if a unit vector x is multiplied with its same unit vector, then the answer is 1. अगर हम एक यूनिट वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 1. Vector ay, unit vector ay multiply with ay, then again it will result as 1. And if we multiply or dot product of vector x with respect to vector y, that is unit vector, then our resultant will be 0. Okay, so you must note down this two formula, that is vector a dot vector b is equal to what? Vector ab into cos theta, where theta is what? Angle between these two vectors, and vector x, or that is called as properties of dot product, that is ax dot ax equal to 1, ay dot ay equal to 1, and az dot az equal to 1. Clear? At the same time, ax dot ay dot az dot ax equal to what? 0. This is what? The basic formula related with the dot product. Okay. Now, if we apply cumulative property on dot product, then we can consider vector a dot vector b can be written as vector b dot vector a. Get it? What I'm saying? Vector a dot vector b is equal to vector b dot vector a. Okay. At the same time, if we apply distributive property, clear? That is vector a dot b plus c equal to what? Vector a dot vector b plus a dot c. These are what basic properties related with the dot product. Okay. Now, next one is cross product. Cross product means what? Consider xyz axis, coordinate system, and in that coordinate system we consider a two vector, that is vector a and vector b. Clear? It indicates the right hand. If we consider by using right hand thumb rule, suppose that curl finger, clear, that curl finger indicates the representation of vector field, then our thumb indicates its direction. क्या रहेगा? अगर हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, क्लियर, उन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्लियर, तो उसकी जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय आवर थंब and it is represented as vector n. Okay, and the angle between these two will be considered as a sine angle. क्या रहेगा इन दोनों के बीच में? हमें sine angle बनेगा. Clear? So vector a cross vector b equal to what? Vector ab sin theta into unit vector n. Means what? क्या होगा? अगर हम वेक्टर a और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? हमें तो मैग्नीट्यूड मिलेगा. एट द सेम टाइम that unit vector n represent its direction. Getting? So if we apply some properties related with the cross product, so vector a cross vector b is equal to what? Minus of b cross a. We can't write it as a b cross a, it should be minus. And if we apply the distributive property, so vector a cross vector into b plus c will be written as vector a cross b plus vector a cross c. Okay. As far as the unit vector is concerned, the cross product of consecutive cyclic element is what? Ax cross ay will result in az, ay cross az result in ax, az cross ax result in ay, and the cross product of same vector, clear, will be considered as 0. That is what? The basic concept related with the cross product. Okay, and the simple formula to memorize the cross product is what?
its determinant form. That is, vector A cross vector B is equal to what? Unit vector Ax, unit vector Ay, unit vector Az represented its first component, that is Ax, Ay, Az, Bx, By, Bz, and if we solve this determinant, we will get the complete expression. Which one? That is A cross B, that is AB sin theta into unit vector n. I hope you will understand up to this. Now, we have some basic example related with the vector and angle. In Cartesian coordinate system, we consider a point, 2 point, that is P1 and P2, 2, 3, 3, and P2 is what? 1, minus 2, 2. Okay. We need to find vector A, its magnitude and its unit vector, angle between A and B, vector B need to find, that is, और उसके बाद then we need to find the perpendicular distance of point from the origin to vector B. Okay. So first we need to find a vector A. So vector A will be written as 2ax, 3ay, 3az. Okay. Because if we find a vector OP, let it O is what? My origin, then OP will be written as what? 2 minus 0 ax, 3 minus 0 ay, 3 minus 0 az. So vector A is what? 2x plus 3y plus 3z. Okay. Then what is its magnitude? इसका magnitude क्या रहेगा? 2 square plus 3 square plus 3 square equal to what? Under root 22. Okay. And its unit vector will be written as vector upon its magnitude. So it should be 2ax plus 3ay plus 3az upon root 22. That is what? A vector representation of vector A. Okay. Now, we need to find the angle. Okay. The angle between A and the y-axis. What it represents? The angle between A and y-axis. अब क्या रहेगा? अगर हम देखो, अगर एक एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्सिस भी क्या रहेगा? इट शुड बी अ वेक्टर. क्लियर? ये क्या रहेगा? एक पूरा का पूरा वेक्टर. सो वी विल कंसिडर बीटा इज द एंगल बिटवीन OP and OY or y-axis. ठीक है. So A dot Y is equal by using dot product. We have the formula vector magnitude of vector A, magnitude of y-axis into cos of beta. Okay. So beta is what? Cos inverse of A dot unit vector Y upon its magnitude. And we know Y जो रहेगा हमारा, clear? It should be considered as a unit vector. Clear? तो वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, इट शुड बी 3 अपॉन क्या रहेगा उसका? दैट इज, देखो यहाँ पे क्या होगा? वेक्टर A डॉट Y हमें लेना है, तो Y सिर्फ यहाँ पे सिर्फ Y कोऑर्डिनेट है, सो X कोऑर्डिनेट एंड Y कोऑर्डिनेट विल बी 0. सो इफ वी मल्टीप्लाई दैट Y विथ 3, सो न्यूमरेटर में कितना आ गया हमारे पास? 3 अपॉन इट्स 22. क्लियर? सो विल गेट द एंगल दैट इज 50.2. Okay. Now similarly we need to find vector B. अब हमें वेक्टर B निकालना है, तो वेक्टर B निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें B के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स तो नहीं दिए. क्लियर? हमें पॉइंट P2 दिया है. क्लियर? और P2 का है 1 minus 2 2. क्लियर? 1 minus 2 2. तो B is what my 1 minus 2, देखो क्या रहेगा? That is what? This vector. So by using distance formula, clear? That is this point minus this point, this point minus this point, that is y, and z minus z. ठीक है? So 1 minus 2 ax, then minus 2 minus 3 y, then 2 minus 3 z. Clear? So should be minus x minus y minus 5y minus z. That is what my angle B. Okay. After that we need, देखो हमारे पास अब वेक्टर A भी मिल गया, हमें वेक्टर B भी हमारे पास है. Then we can easily find the value of angle theta, that is
cos inverse of a dot b upon its magnitude. So after multiplying and solving this equation, we will get angle 145.1. Okay. Now the perpendicular distance between the origin and vector, what it indicates? The perpendicular distance between the origin and vector b, मतलब ये वाली लाइन हमें क्लियर। तो ये वाली लाइन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा वेक्टर है स्टार्टिंग का? वेक्टर ए, क्लियर, इनटू साइन, यहाँ पे जो एंगल चेंज होता है, क्लियर, इट इंडिकेट 180। सो 180 माइनस दिस एंगल विल रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, कितना, √22। ओके, so this is the basic example related with the vector field. One more example we have related with the scalar triple product. A given x minus y plus 2z, then another is what, b equal to y plus z, and we have the another equation c equal to minus 2x plus 3z. Okay, we need to find vector a cross b, then cross c, and compare with a cross b cross c. क्लियर, जैसे कि हमने पहले बताया था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। सो फर्स्ट वी विल फाइंड a क्रॉस b। a क्रॉस b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ax, ay, az, ओके, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ abc, सॉरी a एंड b ओनली, 1 -1 2, एंड हियर यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट नहीं है, सो b का x कंपाउंड क्या होगा यहाँ पे, 0, so 1 and 1, and if you solve this you will get minus 3x minus y plus z, and after that what we need to find, we have the a cross b, that is what, minus 3x minus y plus z need to cross with c। हम क्या कर रहे हैं, a क्रॉस b को फिर से क्रॉस कर रहे हैं इसके साथ, c के साथ, क्लियर। तो क्या होगा यहाँ पे, x a y z कोऑर्डिनेट रहेंगे, यहाँ पे इनिशियली क्या आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले a क्रॉस b देन विथ c, तो c का ऑलरेडी हमारा वेक्टर है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हम क्या करें, -3x प्लस 7y माइनस 2z, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ b क्रॉस c निकालेंगे, एंड देन इट इज क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर a, so we will get 2x plus 4y plus z, and finally we got the vector a cross b cross c is not equal to a cross b cross c, ओके। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, मतलब आपको दिया रहता है एग्जांपल में कि वी हैव 3 वेक्टर्स एंड चेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, इट कम्स फॉर 2 मार्क्स, ओके। सो दिस इज व्हाट दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ तक सभी को समझ में है? What do you mean by vector, position vector, properties of vector, vector laws? Initially we have discussed vector laws, then we have discussed properties of vector operation, then position vector we have discussed, then vector or scalar product we have discussed, then cross product, after that some example related with the cross product and dot product, okay। So next we will start with coordinate system। अगर आपको वेक्टर कंसेप्ट आती है तो ही आप इसको समझ सकते हैं, क्लियर। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम आती है कभी, कौन से है, we have 3 coordinate system। first one is Cartesian coordinate system, another is cylindrical coordinate system, and third one is spherical coordinate system, okay। सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर है, जो उसका बेसिक ओरिजिन स्टार्ट होता है किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का,
that start with कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रहती क्या है? इसी को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो ना, अगर हम कोई वॉल्यूमेट्रिक बॉडी कंसिडर करते हैं और वो वॉल्यूमेट्रिक बॉडी हम प्लेस करते हैं स्पेस के अंदर। ठीक, अब स्पेस के अंदर प्लेस करने के बाद में क्या होगा, इस वॉल्यूमेट्रिक बॉडी का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर? अब डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस है हमें उस वॉल्यूमेट्रिक बॉडी के पास में जाना पड़ता। क्लियर? और वी नीड टू अज्यूम दैट कि वो वॉल्यूमेट्रिक बॉडी या फिर कोई पॉइंट हो, देखो इट मे बी पॉइंट, दैट बॉडी, इट मे बी पॉइंट, इट मे बी लाइन, इट मे बी सरफेस और इट मे बी वॉल्यूम, कुछ भी रहेगा, बट उस हर चीज का ओरिजिन से ही रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो कोई भी हम चीज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो देखो इस बॉडी को हम प्लेस कर दे कहां पे, इन द स्पेस। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीन एक्सिस, सबसे पहले कौन से, एक्स, वाई और जेड। तो ऑब्वियस है इसके खुद के क्या रहेंगे, यूनिट वेक्टर, दैट यूनिट वेक्टर इज व्हाट, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। क्या क्या रहेंगे, यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई एंड यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर? तो कैसा रहता कि अगर हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर डिफाइन करते तो इस बॉडी का जो ओरिएंटेशन है इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट आल्सो रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? अगर हम ये पॉइंट देखो, ये जो डीएल पॉइंट है, इस डीएल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते तो डीएल का क्या रहेगा, उसकी जो लेंथ है ऑन एक्सिस इट शुड बी कंसिडर एज एल एक्स, with respect to y axis we consider as ly, with respect to z axis we consider as lz। ठीक है, तो देखो dl x with and ax, y ay and z az, that is what the representation of dl element। ठीक है, अब क्या होगा, इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंशियल लेंथ इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। दैट इज कौन सा कंसिडर करेंगे हम, वी कंसिडर एज डिफरेंशियल लेंथ dx इन x डायरेक्शन, dy इन y डायरेक्शन, dz इन z डायरेक्शन। ठीक है, अब ये तो हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। क्या होगा, अगर उस पॉइंट जैसे कि हमने प्रीवियसली डिफाइन किया था, अगर इस dl का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन, तो व्हाट वी हैव, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ एल जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ये जो कोई वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, इस वॉल्यूमेट्रिक बॉडी का हमें डिफरेंशियल सरफेस एरिया कंसिडर करना है। क्या करना है हमें, डिफरेंशियल सरफेस एरिया। अब डिफरेंशियल सरफेस एरिया अगर हम कोई कंसिडर करते हैं तो एक साइड कोई भी कांस्टेंट रहेंगे एंड दैट इज रिलेटेड विद द कांस्टेंट प्लेन। ये जो वर्ड है कांस्टेंट प्लेन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट प्लेन अगर रहता है तो कौन सी चीज, कौन सा एंगल कंसिडर करना पड़ता है, कौन सी डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ती है, इट क्रिएट सम कंफ्यूजन। ठीक है, तो अभी ध्यान दो, देखो डिफरेंशियल सरफेस इन एक्स डायरेक्शन, व्हाट आई इंडिकेट, डिफरेंशियल सरफेस इन एक्स डायरेक्शन, मतलब ये वाला। तो क्या रहेंगे, डिफरेंशियल सरफेस इन एक्स डायरेक्शन है तो हम एक्स डायरेक्शन से उसको देख रहे हैं, और एक्स डायरेक्शन से देखने के बाद ऑब्वियस है उसका जो ओरिएंटेशन है इट मे वैरी इन जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या रहेगा, इट शुड बी डी वाई डी जेड इंटू यूनिट वेक्टर एक्स। समझ में आया क्या, देखो क्या है, डी वाई डी जेड इंटू यूनिट वेक्टर एक्स। इसी वॉल्यूमेट्रिक बॉडी को अगर हम वाई डायरेक्शन से कंसिडर करते हैं, मतलब ये वाला डायरेक्शन, तो उसका सरफेस क्या रहेगा हमें, मतलब ये वाला फेस, और ये फेस क्या इंडिकेट करेंगे उसका, डी एक्स डी जेड।
इनटू यूनिट वेक्टर ए वाई। देखो dx dz तो है, मतलब जहाँ पे चेंज हो रहा, बट उसकी जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस सरफेस इज व्हाट, इट शुड बी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है। एट द सेम टाइम क्या है, अगर हम उस बॉडी को ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने के बाद में क्या होता कि हमें वो कहाँ पे प्लेस मिलेगी, एट एक्स वाई प्लेन। ठीक है। तो एक्स और वाई प्लेन के ऊपर उसका एरिया चेंज हो रहा, जेड डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है। ठीक है। तो जेड इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन, सिमिलरली वाई इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन एंड एक्स इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन। ठीक है। ये होगा उसका डिफरेंशियल सरफेस। क्लियर? दैट इज dx dy dz. Initially we have discussed a differential length, then differential surface, and last term is what, differential volume. clear? अब differential volume क्या रहता, देखो differential volume means what, वो बॉडी तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रही है, either in x डायरेक्शन, either in y डायरेक्शन और in z डायरेक्शन। ठीक है। तो क्या होगा, that differential volume will be considered as what, dx dy dz. clear? So this is what related with the Cartesian coordinate system. Ready? Yes everyone? Okay. Next coordinate system is what? Cylindrical coordinate system. अभी क्या होता है तो cylindrical coordinate system में, we consider a cylindrical body coincide with z axis of Cartesian coordinate system. क्या रहेगा cylindrical coordinate system में, cylindrical coordinate system का तो z axis है, it must coincide with z axis of Cartesian coordinate system। ठीक है। तभी हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम कोई पॉइंट P कंसिडर करते हैं, ये हमारी सिलेंड्रिकल बॉडी है, इस सिलेंड्रिकल बॉडी का ये वाला पॉइंट P है। ठीक है, ये वाला, और इसका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन विल बी कंसिडर एज r। इन सम केसेस वी कंसिडर एज अ रो, कभी कभी उसको हम रो भी डिफाइन करते हैं, किसी किताब में उसको r भी डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो देखना, अगर क्वेश्चन कभी ये कंफ्यूज मत हो ना कि सर r दिया है तो वी कंसिडर इज इन कार्टेशियन, सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉसिबल नहीं है ऐसा। ठीक है। अगर वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है z एक्सिस एंड एंगल, देन इट मस्ट बी अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो क्या होगा, अभी ये पॉइंट P जो है, इसका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन विल बी व्हाट, r1। इट मेक्स एंगल फाई। अभी एंगल फाई जो है, इट शुड बी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस होगा, बट इट शुड बी एट दिस प्लेस। यहाँ पे क्या रहेंगे उसका फाई, एंड जेड इज व्हाट, जो ये हाइट है इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी की, इट इंडिकेट द जेड एक्सिस। ठीक है। तो जैसे हम इस पॉइंट P को कंसिडर करते हैं, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके यूनिट वेक्टर डिफाइन किए थे, कौन से ax ay az। क्लियर? तो एट द सेम टाइम वी हैव द यूनिट वेक्टर ar a phi az, और वी कैन कंसिडर a rho a phi az also। ठीक है। so if we apply again the cross product and dot product, so we will get according to cross product r phi z, clear, phi z, phi cross z equal to r, z cross r equal to phi, clear। at the same time if we apply cross product on same vector,
then result will be 0. Clear? That is vector r cross vector r equal to 0, vector r dot vector r equal to 1. Similarly, it will be vector phi cross vector phi is what? 0, but vector phi dot vector phi equal to 1. Clear? And it will be represented as vector a equal to what? r ar plus phi a phi plus z a phi z a z. This is the what? Representation of cylindrical coordinate system. Okay. Now, important topic, differential areas and volume of which one? Cylindrical coordinate system. तो क्या रहता, देखो जैसे हमारे पास r, phi और z ये 3 पैरामीटर है, तो क्या रहेगा, क्या होता, अगर हमें डिफरेंशियल सरफेस, ये जो ग्रीन कलर का डिफरेंशियल सरफेस एरिया वहाँ पे इंडिकेट हो रहा, ये डिफरेंशियल सरफेस एरिया पहले उसको हम चेक करते हैं कौन से डायरेक्शन में वैरी हो रहा, ठीक है, समझ में? देखो r वैरीज विथ फाई, देखो ना क्या कैसे रहता है, r वैरीज विथ फाई का जो मीनिंग है ये क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, देखो अगर ये ओरिएंटेशन ये वाला डायरेक्शन में चेंज हो रहा, मतलब ये देखो कौन सा, टूवर्ड्स वाईजेड प्लेन की तरफ वो वैरी हो रहा, तो फाई तो वैरी हो ही रहा यहाँ पे, अगर फाई वैरी हो रहा तो आर का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा. क्लियर? दैट्स व्हाई वी कंसीडर dsr इज इक्वल टू r d फाई dz. समझ में आया? देखो ये डिफरेंशियल लेंथ क्या है हमारे पास, dr, ये जो डिफरेंशियल लेंथ है r d फाई, समझ में आया? ओनली dr, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ r वैरी हो रहा, ये अगर फाई वैरी हो रहा तो फाई के साथ क्या वैरी हो रहा, r भी वैरी हो रहा है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर r इंटू डी फाई. समझ में आया? r इंटू डी फाई, एंड सिंपली यहाँ पे करेंगे dz, बिकॉज z इज इन सिंगल डायरेक्शन, so we'll consider as a dz. ठीक, तो क्या होगा, अभी हमें हर एक डिफरेंशियल इसके सरफेसेस निकालने, सो डिफरेंशियल सरफेस इन आर डायरेक्शन, दैट इज dsr. तो dsr जब वैरी होगा तो फाई भी वैरी होगा एंड z भी वैरी होगा, तो dz विल बी रिमेन एज dz. तो जब फाई वैरी हो रहा तो फाई वैरी होते वक्त क्या होता, r इंटू डी फाई. So the differential surface area in r direction, it will be considered r d phi dz, or it can be considered rho d phi dz. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशियल सरफेस एरिया इन फाई डायरेक्शन. जब फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो क्या वैरी हो रहा है, सिर्फ डी आर एन जेड, तो यहाँ पे क्या वैरी होगा, dr dz in the direction of a phi. Clear? And next, differential surface area in z direction. तो z डायरेक्शन में जब वैरी होगा तो क्या होगा, r वैरी होगा फिर, ठीक है, so it should be r dr d phi. क्या रहेगा, r dr d phi. This is what the differential surface in case of cylindrical coordinate system. Okay, now its volume is will be represented as multiplication of this all, so differential volume is r dr d phi dz. क्या क्या रहेगा, r dr d phi dz. yes everyone, समझ में है?
ओके नेक्स्ट, मेन इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज व्हाट माय स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप इसको समझ गए तो आप अर्थ के स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसी की रिलेटेड फिर हम वेव प्रोपगेशन को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्या रहता, देखो, वी कंसीडर अ पॉइंट P दैट इज r थीटा फाई। यहाँ पे जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेट द पॉइंट दैट इज r थीटा एंड फाई। क्लियर? अब r थीटा फाई को जब कंसीडर करते हैं तो क्या रहेगा, जो r theta phi है, we consider r1 is what, a distance of point P from the origin. r1 is what, a distance of point P from the origin. Then is what, theta is the angle made by that line or r1 with z axis. ये देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, थीटा एंड फाई इज व्हाट, अगर इसी पॉइंट का हम प्रोजेक्शन लेते एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो एक्स वाई प्लेन के साथ में एक्स एक्सिस में जितना एंगल बना है दैट इज कॉल्ड एज फाई। तो क्या रहेगा, आर थीटा एंड फाई। ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो अगेन वी विल अप्लाई सम क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। इनिशियली विल डिस्कस क्रॉस प्रोडक्ट according to cyclic order, r cross phi equal to तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में r क्रॉस थीटा इक्वल टू फाई, थीटा क्रॉस फाई इक्वल टू r एंड फाई क्रॉस r इक्वल टू थीटा। क्लियर? दैट इज रिलेटेड विद द क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते सेम यूनिट का उसी के साथ में, तो रिजल्ट विल बी 0 एंड इफ वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद द सेम, तो रिजल्ट विल बी 1। क्लियर? एंड इट्स यूनिट विल बी 1। So vector A will be represented as r plus theta a theta plus phi a phi. Clear? This is the representation of spherical coordinate system. Okay. Simply इसका जो डिफरेंशियल लेंथ सरफेस और वॉल्यूम है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर हम r वैरी करते तो थीटा भी वैरी होता, थीटा वैरी करते तो आर भी वैरी होता, फाई भी वैरी होता। ठीक है, सो वी हैव द डिफरेंशियल लेंथ इज व्हाट, ध्यान दो सब लोग, अगर आर वैरी होगा तो सिंपली आर डी आर। क्लियर? अगर थीटा वैरी हो रहा तो आर भी वैरी होगा, सो इट शुड बी आर डी थीटा ए थीटा। और जब फाई वैरी हो रहा तो आर और थीटा वैरी होता, बट थीटा का साइन एंगल वैरी होगा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर r sin theta d phi a phi. This is what my differential length of spherical coordinate system. ठीक है, इसके बाद में we'll discuss differential surfaces in case of spherical coordinate system. तो उसमें क्या होगा, ध्यान दो, देखो अगर आपके पास differential length है then you can easily find the value of differential surface. अब वो कैसे है? Same concept is also applicable in case of Cartesian and cylindrical coordinate system also. ठीक है, देखो हमें किस में चाहिए, r डायरेक्शन में, तो r इक्वल टू हमारा हो गया कांस्टेंट। क्लियर? तो r अगर कांस्टेंट है तो वी विल मल्टीप्लाई
थीटा एंड फाई, मतलब देखो ए फाई और ए थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, दैट इज व्हाट डिफरेंशियल सरफेस इन r direction. Clear? Similarly, differential surface in theta direction is what my r sin theta dr d phi. यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ dr और d phi का कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया. क्लियर? एट द सेम टाइम हम जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें dr एंड d थीटा को, ठीक है, तो विल गेट द डिफरेंस सरफेस इन फाई डायरेक्शन, सो इट विल बी व्हाट सिंपली r d थीटा d phi. क्लियर? क्या रहेगा, आर डी थीटा डी फाई. क्लियर? एंड ऑब्वियस, तो डिफरेंशियल वॉल्यूम इज व्हाट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द लेंथ. ठीक है, क्या रहेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई. क्या करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई. क्लियर? so this is what now differential volume, surface or length in case of spherical coordinate system. Get it? Yes, everyone got it? चलो अभी इसके बाद क्या करते, हम एक समरी देख लेते तीनों इसकी, किसकी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, that is what a thumb rule. Clear? Or memorize term for vector relations. What are the variables, what are the vector representation, what is the magnitude, what is the position magnitude or position vector, what are the vector basic vector properties, what are the dot product, what is the cross product, what is the differential length, what is the differential surface, and what is what, lastly I represent a differential volume in case of vector relation. Got it? ठीक है बेटा सभी लोग यहाँ तक. After that we will take a break of 5 minutes and we will start with electric and magnetic field. Okay.
Now let us start with electric and magnetic fields. Now the next topic is what? Electrostatic. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, एंड मैग्नेटोस्टैटिक, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन रहेगा, क्लियर, इट इंडिकेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ध्यान दो सभी लोग कैसे का। इनिशियली वी विल डिस्कस विद कूलम्स लॉ। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कूलम्स लॉ से। और कूलम्स लॉ जो है दैट इज रिलेटेड विद द चार्ज से। तो क्या रहता, अगर हम दो पॉइंट चार्जेस कंसिडर करते और वो दो पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड एट डिस्टेंस आर, फर्स्ट वन इज, अगर एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो उसका काउंटर पार्ट जो रहेगा इट शुड बी नेगेटिव। क्लियर, देखो, टू लाइक चार्जेस आर रिपेल विथ ईच अदर एंड टू अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है और वो दो पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर एंड दे आर एट different potential, or if first charge is positive then another charge is what, negative, that time what we consider, there is exhibits some force and that force is called as electrostatic force। क्या डिफाइन करेंगे उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किन दोनों के बीच में? दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, और उसमें से एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव रहना चाहिए
तो दूसरा नेगेटिव रहना चाहिए। क्लियर। अब क्या होगा अगर हम एक सिस्टम ऑफ चार्जेस कंसिडर करते हैं, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा वो फोर्स किस तरह से हम इंडिकेट करते। अगर हम एक सिस्टम ऑफ चार्जेस कंसिडर करते हैं, क्लियर, सोर्सेस, let it be q1, q2, q3, q4, clear, and all the charges have some different charge on it, either positive or negative, so there exhibit a individual force between each point charges. Clear. There exhibit a individual force between each point charges. Clear. So the total force F because of point charges, suppose if we consider Q1 and Q2, these are 2 point charges. Clear. इन दोनों के बीच में F1 नाम का फोर्स है हमारे पास, ये हमारा Q2 Q3 नाम का फोर्स है, इन दोनों के बीच में हम फोर्स एग्जिबिट कंसिडर कर रहे हैं, ये Q4 है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स है। क्लियर। तो इसी तरह से क्या होगा, हर पॉइंट चार्ज के बीच में एक ऐसा फोर्स डिफरेंस रहेगा। ठीक है। सो द टोटल फोर्स पूरे सिस्टम का इट शुड बी summation of all the forces. Clear. That is F1 plus F2 plus F3 like this. समझ में आया? That is called as principle of superposition. क्या डिफाइन करेंगे हम इसको? Principle of superposition. Getting? तो क्या रहेगा अगर हमारे पास ये दो फोर्सेस है, सॉरी दो पॉइंट चार्जेस है, Q एंड Q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारे पास, r डिस्टेंस है, तो द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस विल बी रिटन एज 1/4πε0, क्या इंडिकेट करेंगे 1/4πε0, क्लियर, फर्स्ट पॉइंट चार्ज into second point charge upon r square in the direction of AR। ये क्या रहेगा हमारा यूनिट वेक्टर AR, क्योंकि देखो अगर फोर्स वहां पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है वहां पे उसकी डायरेक्शन, मतलब कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा वो भी हमें पता रहना चाहिए। क्लियर। तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर अ फोर्स इज व्हाट AR। क्लियर। ये क्या रहेगा हमारा यूनिट वेक्टर AR, एंड इसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज फर्स्ट फोर्स चार्ज माइनस सेकंड फोर्स चार्ज, और उसका यूनिट वेक्टर रिलेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा हमारा वेक्टर आर। क्लियर। एंड इप्सिलॉन जीरो इज व्हाट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या रहती है हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू हमारे पास 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। इस तरह से हम डिफाइन कर दे कूलम्स लॉ। क्लियर। तो जैसे मैंने बताया था सिस्टम ऑफ चार्जेस है हमारे पास, वो सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है F1 प्लस F2 प्लस F3 लाइक दिस, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो ना 1/4πε0, अगर हम एक पॉइंट चार्ज P कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट चार्ज P का फोर्स निकालना है विद दिस डिफरेंट चार्जेस, तो क्या रहेगा Q कांस्टेंट है हमारे पास, Q1 Q/r1 स्क्वायर, r1 इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from Q1 प्लस नेक्स्ट पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q2। क्लियर। उसका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P कितना है हमारे पास R2, तो इट शुड बी Q2 इंटू Q/r स्क्वायर इंटू AR डायरेक्शन। ठीक है। लाइकवाइज वी कैन फाइंड द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम। ठीक है। सो फाइनली वी कैन राइट इफ the point charges, so source point charges are varying from number 1 to n. Clear. So the total force is what, my 1/4πε0 summation varying from 1 to n Q/r square into AR, that is what into Q। Clear। बाद में क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट F/Q, एंड F/Q अगर हम लेते हैं तो Q विल गेट कैंसर, so electric field is what 1/4πε0 I varying from 1 to n r1 square upon Q into AR, that is what electric field into system of charges। Clear। इस तरह से तो अगर हम कोई सिस्टम चार्जेस कंसिडर करते
तो वो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता ओवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज। तो सबसे पहले बॉडी हमारे यहाँ थी दैट इज पॉइंट चार्ज। कौन से आएंगी? पॉइंट चार्ज। सेकंड इज व्हाट? लाइन चार्ज, देन सरफेस चार्ज एंड आफ्टर दैट वॉल्यूम चार्ज। कितने टाइप की बॉडीज है हमारे पास? पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड गेटिंग। कितने टाइप्स की बॉडी है हमारे पास? पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। तो ये जो चार्जेस है उसकी खुद की डेंसिटी हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, पॉइंट चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, क्लियर। उसके बाद में क्या रहती? देन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अगर हम जो इलेक्ट्रिक, अब हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज विल बी, जैसे कि हमने प्रीवियस स्टडी किया, 1/4πε0 समेशन वैरिंग फ्रॉम 1 to n qi/r² into ar, क्लियर, वेयर i वैरिंग फ्रॉम 1 to n। जब लाइन चार्ज लेते तो लाइन चार्ज की खुद की डेंसिटी यहाँ पे हमने इंडिकेट किया, दैट इज व्हाट? लैम्बडा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज इज व्हाट? 1/4πε0 लाइन इंटीग्रेशन ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू dl/r² into ar, क्लियर। इसके एक्सप्रेशन है, अगर आप किसी टेक्स्ट बुक्स में देखोगे हेड का या फिर ऐसे डिफरेंट टाइप की जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, इसमें आपको इसका एक्सप्रेशन डेरिवेशन मिलेगी, हाउ टू कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्या होगा नेक्स्ट इज व्हाट? में सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज इज व्हाट? 1/4πε0 rho indicate the surface charge density upon r², clear, into ar, that ar indicate the cap, clear, that r indicate, r cap indicate ar, and next one is what? क्या है हमारे पास? वॉल्यूम चार्ज। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं रो से, क्लियर, किससे डिफाइन करते हैं? रो से। So it should be electric field due to line charge is what? 1/4πε0 volume integration of volume charge density upon r² into d rho और dt, ठीक है। इस तरह से हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं, क्लियर। देन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डाइवर्जेंस एंड कर्ल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो क्या थे हमारे पास? 1/4πε0 q/r² into ar। अब ये किसकी वजह से? सिर्फ एक सिंगल पॉइंट की वजह से। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज वैरिंग एज इनवर्सली विद द r², क्लियर। मतलब क्या? जैसे जैसे हम r को बढ़ाते जाएंगे, याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन आता है गेट में कि अगर हम r को वैरी करते, क्लियर, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन वी गेट क्या रहेगा? अगर हम r को वैरी करते हैं, r को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? डिक्रीज। अगर r को और डिक्रीज करते हैं तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीज,
क्लियर, इस तरह से। नेक्स्ट इज गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या रहता कि एक अगर कोई वॉल्यूमेट्रिक बॉडी, कुछ भी रह सकता है, आइदर लाइन, सरफेस, वॉल्यूम, इवन अ पॉइंट ऑल्सो। तो गॉसेस लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इंडिकेट हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन दैट बॉडी। सिंपली एक ही स्टेटमेंट में इसका आंसर है, क्या रहता? हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस आर एनक्लोज इन दैट बॉडी, इट इंडिकेटेड बाय गॉसेस लॉ। क्लियर? तो इसका रिलेशन है क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए और डी एल इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इनक्लोज। क्लियर? क्या रहेगा? क्यू इनक्लोज क्या रहेगा हमारा? चार्ज प्रेजेंट इन दैट बॉडी। ओके, समझ में आया सभी को? Now, if you consider a differential form of electric Gauss's law, clear? So del dot D, that del indicate the divergence. क्या रहेगा? अब डाइवर्जेंस क्या रहेगा? ध्यान दो। अब डाइवर्जेंस इज व्हाट? अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी बॉडी। क्या इंडिकेट करेंगे हम? फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी इंडिविजुअल बॉडी। ध्यान दो, अगर हम एक बलून कंसिडर करते हैं, उस बलून के अंदर हम एयर फिल करते और जैसे ही हम उस बलून में से एयर रिलीज करते तो उसका जो ओपनिंग एंड है बलून का, वहां से क्या होगा? पूरी की पूरी एयर फ्लो होती। तो ऐसे अगर हम किसी बॉडी के ऊपर, एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है जिसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, उस बॉडी को अगर हम एक्सेस दे रहे कि नहीं, आपके अंदर का जितना भी चार्ज हो बाहर निकाल दो, ठीक है? तो क्या होगा? हम एक पाथ प्रोवाइड करते उस बॉडी के ऊपर। क्लियर? तो वहां से जो चार्ज बाहर आएगा, दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट व्हाट? माय डाइवर्जेंस। तो ऑब्वियस है, जब चार्ज बाहर निकल रहा तो क्या हो रहा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकल रहा। क्लियर? क्या हो रहा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज बाहर निकल रहा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जेंस कंसेप्ट। तो ऑब्वियस है, जो चार्ज बाहर निकल रहा, इट हैज अ डायरेक्शन इन ए एक्स, ए वाई और ए जेड डायरेक्शन, और इन कार्टेशियन और स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है? तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डाइवर्जेंस को विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर। ठीक है? एक एग्जांपल देखते हैं हमें क्या करना है। जैसे मैंने पॉइंट चार्ज का एग्जांपल दिखा था, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। एक स्पीयर है, क्लियर? स्पीयर के ऊपर का फाइंड द फील्ड आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर ऑफ रेडियस ए। रेडियस की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? तो क्या रहेगा? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू व्हाट? 1/ε0 क्यू एनक्लोज। दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। क्लियर? और गॉसेस लॉ के बाद में हम रेडियली आउटपुट बाहर निकल रहा हमारे वहां, नहीं क्या? तो क्या रहेगा? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू डी है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे? ए। तो फाइनल रिलेशन क्या रहेंगे हमारा? E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए आर, दैट इज बिकॉज ऑफ स्पीयर। ठीक है? नेक्स्ट we need to find the electric field outside the inside the cylinder which contains the charge density as rho. ठीक है? तो फिर से सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू व्हाट? 1/ε0 इंटू क्यू एनक्लोज। ठीक है? तो क्या रहेगा? और ऑलरेडी हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या करेंगे हमें सिर्फ डेंसिटी की वैल्यू रो की जगह पे के आर पुट करना है। कौन सा? कहाँ पे? ये वाला जो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे, दिस वन। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे रो की जगह पे हम के आर पुट करेंगे, वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ बिकॉज ऑफ सिलेंड्रिकल सर्फेस। ठीक है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, ध्यान दो सब लोग। इसी तरह के न्यूमेरिकल गेट के एग्जाम में आते हैं। टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन कैरिंग इक्वल बट अपोजिट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, क्लियर, फाइंड द फील्ड इन ईच ऑफ द थ्री रीजन। हमें सिर्फ कंसेप्ट स्टडी करनी है। आपको पता है रोयल का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 इप्सिलॉन। क्या रहता, रो एस अपॉन 2 इप्सिलॉन। अब रो एस की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव और रो। ठीक है, देखो यहाँ पे दो शीट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये हमारे पास तीन सेक्शन है, ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। द फील्ड इज व्हाट, फील्ड क्या रहता है हमारे पास, रो अपॉन एप्सिलॉन 0, क्लियर, रो अपॉन 2 इप्सिलॉन 0। यहाँ पे 2 इप्सिलॉन चाहिए। कंसिडर करो कि हमारे पास ये वाला शीट ऑफ चार्ज है जो कि पॉजिटिव डेंसिटी के साथ है, ये देखो प्लस पॉजिटिव डेंसिटी, और दूसरा शीट ऑफ चार्ज जो है वो कैसे, नेगेटिव डेंसिटी के साथ है। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज है वो रेडिएट करेगा क्या, इस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, जो माइनस z डायरेक्शन है उसकी, ये वाली, यहाँ पे उसकी फील्ड डेंसिटी क्या रहेंगी, माइनस रो अपॉन 2 इप्सिलॉन 0, और ये डायरेक्शन में क्या रहेंगे उसकी, पॉजिटिव। सिमिलरली बिकॉज ऑफ दिस शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, देखो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्लियर। अब फील्ड, ये शीट की वजह से जो चार्ज निकल रहा, ठीक है, इट शुड बी पॉजिटिव, और ये जो डायरेक्शन उसकी वो कैसे हमारी नेगेटिव। ठीक है, तो ये सिंपल सा अजम्पशन रहता बिकॉज ऑफ टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज के ऊपर, क्लियर। एक सिंपल कंसेप्ट है, कभी कभार एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है रिलेटेड विद गेट, मगर एक दो बार पूछा है। व्हाट डू मीन बाय वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो याद रखना, अगर हमें कोई लाइन कंसिडर करते तो उसके ऊपर हमें कुछ पोटेंशियल निकालना है। आप सभी को पता है E इज इक्वल टू, जो रिलेशन है ये वाला, तो वेक्टर पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट वी, क्या रहेगा, सिंपली डेल वी, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे हम क्या डिफाइन करते हैं उसको, डाइवर्जेंस। तो क्या रहेगा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ओवर द पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, तो वी कैन इजीली फाइंड द वोल्टेज, क्लियर, क्या रहेगा, वोल्टेज बिटवीन दीज टू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, वेरिंग फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एल। एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। और अभी आता है हमारी बाउंड्री कंडीशन, किसके ऊपर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दो, देखो अगर कोई सरफेस है तो सरफेस के बाउंड्री के ऊपर हमें उसकी फील्ड कंडीशन चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या रहता, अगर एक सरफेस है, जो सरफेस शीट ऑफ चार्ज है, और वो शीट ऑफ चार्ज का है, कंप्लीटली चार्ज है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस सेम रहेगा। क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस क्या चाहिए रहता, सेम रहता, ठीक है। ये कब कंडीशन पॉसिबल है, जब वो शीट ऑफ चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। देखो ना, एड सरफेस विथ चार्ज डिफाइन है यहाँ पे, ठीक है। इन केस अगर ये सरफेस बॉडी है, इस सरफेस बॉडी के ऊपर एक चार्ज प्रेजेंट है हमारा, और उसको हमने ऊपर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अबव इज ग्रेटर देन बिलो, ठीक है। क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अबव इज व्हाट, और बिलो जो नीचे की फील्ड है, इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव फील्ड एज कंपेयर टू अबव फील्ड।
ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय बाउंड्री कंडीशन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज व्हाट वर्क डन बिकॉज ऑफ मूविंग चार्ज। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर से हमने वोल्टेज निकाला, तो वर्क डन क्या रहेगा, दैट इज रिलेटेड विद द फोर्स, बिकॉज फोर्स अगर लग रहा है वहां पे तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन हो रहा ऑन चार्ज, क्लियर। और चार्ज कैसे रहते, कांस्टेंट रहते हैं, तो F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। सो द टोटल वर्क डन इज व्हाट, अगर हम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चार्ज को ट्रैवल कर रहे हैं, समझ में आ रहा क्या हो रहा, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हम चार्ज को ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, कुछ तो अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। ये अब ये फोर्स कैसे रहेगा, Q1 के साथ Q का फोर्स, Q2 के साथ Q का फोर्स, Q3 के साथ Q का फोर्स, इन सब की समेशन, दैट्स व्हाई वी कंसीडर द इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है। और F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, तो Q कांस्टेंट है हमारा, सो वी कैन डिफाइन Q इक्वल टू ए टू बी ई डॉट डी एल, क्लियर। एंड आप सभी को पता है ये जो कंसेप्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई डॉट डी एल, इट विल रिजल्ट इनटू वोल्टेज, क्लियर। सो वी बी, देखो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, if you multiply that potential with Q, so we will get the work done W, clear। और VA minus VB, sorry VB minus VA equal to what, work done per unit charge, getting, this is the concept of work done, ठीक है, इस तरह से। so that is all related, important related with the electric field or electrostatics, getting, yes everyone। Next we will discuss magnetic field। एक सिंपल कंसेप्ट है, आप सभी को पता है, राइट हैंड थंब रूल। अगर एक वायर एलिमेंट है और उसमें से अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे इंडिकेट हो रहा डायग्राम में, उस वायर को अगर हम कर्व फिंगर से पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो थंब इंडिकेट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड कर्व फिंगर इंडिकेट व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दैट इज व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ कर्व फिंगर, ठीक है। तो ये हमारी वायर थी, करंट एलिमेंट, इसके ऊपर हम जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, सो दैट बी इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, एफ इंडिकेट फोर्स, एंड वी इज व्हाट, वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर। तो क्या हो रहा, जब हमने उस करंट एलिमेंट को कंसिडर किया और उसमें से करंट फ्लो किया, तो उसके जो पेरीफेरी है, उस पेरीफेरी में एक फील्ड जनरेट होती, एंड दैट फील्ड इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या रहती वो, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस मैग्नेटोस्टैटिक में क्या कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो इसको हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, गेट पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज व्हाट, बायो सावर्ट्स लॉ, देन एम्पियर सर्किट लॉ इट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है,
देन वी हैव स्केलर एंड वेक्टर मैग्नेटिक। जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसिडर किया, वैसे क्या हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते, विच वन, बायो सवर्ट लॉ। ध्यान दो क्या होता, वो जो एक बात है, बायो सवर्ट लॉ क्या बोलता, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डीएच प्रोड्यूस एट अ पॉइंट पी। देखो ये हमारा करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट में से ये जो इंडिकेट हो रहा है दैट इज वॉट डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर, इस करंट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज इंडिकेटेड बाय बायो सवर्ट लॉ। ठीक है, तो डीएच क्या हमारा डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दे तो क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो क्या रहेगा, आई इज वॉट, ये हमारा करंट फ्लो हो रहा, तो इसमें से हम कोई डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर करते हैं डीएल, एंड मेट सम एंगल अल्फा विद द डीएच। ठीक है, जो टेंडिंग डायरेक्शन है उसके साथ हमें एंगल कंसिडर करना पड़ता। कौन सी डायरेक्शन, टेंडिंग डायरेक्शन, मतलब किस कौन से डायरेक्शन की तरफ हमारा करंट फ्लो हो रहा, वहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अल्फा। क्लियर, तो वैल्यू ऑफ डी एच इज व्हाट, के आई डी एल अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। क्या इंडिकेट कर रहे हैं हम, के आई डी एल अल्फा अपॉन, सॉरी साइन एंगल ऑफ अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज व्हाट 1/4 पाई, कि कितना रहेगा, सिंपली के की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 पाई। सो फाइनली अकॉर्डिंग टू बायो सवर्ट्स लॉ द वैल्यू ऑफ डी एच इज इक्वल टू व्हाट, के, सॉरी यहाँ पे के नहीं चाहिए, आई डी एस साइन अल्फा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, दिस इज द बायो सवर्ट्स लॉ। तो एक एग्जांपल कंसीडर करते, सॉरी हमने क्या स्टडी किया पहले, बायो सवर्ट्स लॉ, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा हमें, हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी that is related with the mu times of h, where mu is called as permeability of the medium। जैसे वहां पे फ्री स्पेस परमिटिविटी थी, कहाँ पे, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका जो वैल्यू है इट शुड बी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कितना रहता, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। क्लियर, और जैसे ही आप म्यू की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे फील्ड के साथ, विल गेट द फ्लक्स डेंसिटी। एंड अगर हमें सिर्फ फ्लक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, फ्लक्स, दैट मीन्स फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें निकालना है, दैट इज इंडिकेटेड बाय साई, इट शुड बी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। क्या रहेगा यहाँ पे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस, एंड इट शुड बी वेबर। फ्लक्स को हम किस में मेजर करेंगे, वेबर में मेजर करेंगे। ठीक है, यस एवरीवन। नेक्स्ट इज व्हाट,
द नेक्स्ट इज कर्ल ऑपरेटर, ठीक है। अब ध्यान रखना, कभी भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कर्ल ऑपरेटर जो मेन रोल ऑपरेटर ये करता है, क्योंकि कर्ल क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें एट लार्ज डिस्टेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को किसी दूसरी जगह पे निकालना पड़ता, तो कर्ल क्या रहता, अगर हम कर्ल डिफाइन करते हैं तो देखो ई एक्स ई वाई, ये जो ई जेड है दैट इज व्हाट अ यूनिट वेक्टर, क्लियर। और इसको हम फिलहाल अभी सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसीडर कर रहे हैं। द कर्ल ऑपरेटर कैन बी ऑल्सो रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ डेल क्रॉस ऑफ बी इक्वल टू ax az del by del x del by del y and del by del z of magnetic field density, that is bx by and bz, ठीक है। इस तरह से ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला दैट इंडिकेट द कर्ल ऑपरेटर, ठीक है। And last topic of this magnetic field is what important topic related with the GATE examination, that is called as Stokes theorem। जैसे हमने वहाँ पे डाइवर्जेंस स्टडी किया था, वैसे यहाँ पे क्या हमारे पास स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है, इट्स इंडिकेट द लाइन इंटीग्रेशन एंड सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब ये इन दोनों के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करता लाइन इंटीग्रेशन एंड सरफेस इंटीग्रेशन के बीच में, ठीक है। तो ध्यान दो, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए डॉट डी एल, ठीक है। और इसी को हम जब हम स्टोक्स थ्योरम को स्टडी करते, ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम का जो एक्सटेंड पोर्शन दैट इज इंडिकेट बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, इज यूज्ड टू डिराइव द दिस थ्योरम इज यूज्ड टू डिराइव द एम्पियर सर्किटल लॉ। अब वो एम्पियर सर्किटल लॉ जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइसेस है उसमें काम में आता। इस तरह से देखो, तो क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या बोलता, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस, जे मतलब क्या है करंट डेंसिटी, आई एनक्लोज जो था हमारा, आई एनक्लोज मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के ऊपर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोड्यूस मिलेगी, ठीक है। देखो ना, डेल क्रॉस ऑफ एच इक्वल टू जे, क्या बोला हमने, डेल क्रॉस ऑफ एच इक्वल टू जे, तो जे इज व्हाट, जे डॉट डी एस करता है हमारा करंट, ठीक है। सो विल गेट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल, क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज एम्पियर सर्किटल लॉ। इसी को हम क्या डिफाइन करते, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। इट स्टेट दैट द सर्कुलेशन ऑफ एच अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू द करंट इनक्लोज बाय द पाथ। मतलब क्या होगा, देखो अगर ये हमारे पास पूरी पाथ है ये वाली, तो यहाँ पे कितना करंट है, इस करंट के ऊपर उसका क्या डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये वाला आई इनक्लोज और जे डॉट डी एस विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल टू एच डॉट डी एल, दैट इज लाइन इंटीग्रल, रेडी। इस तरह से, तो अगर हमने ये सरफेस कंसिडर किया, एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे, अगर ये सरफेस कंसिडर किया हमने और यहाँ पे हम, ये हमारे डीएल है, इस वैरी हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एम्पियर लॉ इज यूज्ड टू फाइंड डिटरमाइन द एच, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, रेडी। इस तरह से हमने स्टडी किया उसका मैग्नेटिक फील्ड। मैं फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड काफी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है। इनिशियली वी हैव डिस्कस्ड विच वन, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया उसका, मैग्नेटिक फील्ड में बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। जैसे आपके पास डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड निकल गई, आफ्टर इंटीग्रेशन यू कैन इजीली कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकलने के बाद में वी विल जंप टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब B इक्वल टू म्यू इंटू एच, क्लियर। हमारे पास H हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था और म्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज 4.10⁻⁷, क्लियर। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू B इक्वल टू म्यू इंटू एच, ओके। आफ्टर दैट
जैसे हमारे पास बी निकल गया, ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं फिर, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। क्या है हमारे पास, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस, और उसका यूनिट क्या है हमारे पास, टेस्ला। ठीक है, then we study curl operator. Curl operator is used to find differential magnetic field with related with the flux density. ठीक है, then we have discussed Stokes theorem. Stokes theorem का इक्वेशन क्या है हमारे पास, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस ऑफ ए डॉट डी एल। ठीक है, वेयर ए इज व्हाट में, फील्ड, ये क्या रहेंगे हमारे पास, फील्ड। और हमें स्टोक्स थ्योरम में ये वेरीफाई करना पड़ता कि हम जो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल ले रहे हैं वेदर सेटिस्फाई इक्वल टू कर्ल ऑफ ए डॉट डी एल, हमें सिर्फ चेक करना पड़ता है, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर हमेशा, दैट इज इवेल्युएट और वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, एक छोटी सी फील्ड दे रहेंगी, तो छोटे से फील्ड को हमें चेक करना पड़ता है वेदर इट इज सेटिस्फाई द स्टोक्स थ्योरम और नॉट। ठीक है, देन वी हैव एम्पियर सर्किट लॉ, दैट इज surface integration of j dot ds equal to line integration of h dot dl. क्या है, surface integration of j dot ds equal to line integration of h dot dl. Clear? That is Ampere circuit law. इस तरह से, तो that is all related with the magnetic field. और अभी हम जो मेन कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, वाई द सब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो स्टडी करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट करंट, करंट की डायरेक्शन, करंट की मूवमेंट क्या रहती किसी कहीं पे भी। ठीक है, तो क्या है, देखो ना, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू आई एनक्लोज। क्लियर? और वी कैन डिफाइन आई डी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। क्या डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, इट इंडिकेट द डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब देखो अभी क्या रिलेशन हो रहा, फाई इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड एंड आई इंडिकेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मीनिंग इज व्हाट, अगर कोई हमारी बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर फाई का इफेक्ट आ रहा, दिस मीन्स व्हाट, फ्लक्स का इफेक्ट आ रहा, और फ्लक्स का इफेक्ट आने के बाद में ऑब्वियस है वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। दैट कंसेप्ट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में क्या क्या इंडिकेट करेंगे इसको हम, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, उस डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर से ही फिर डिराइव होते हैं हमारे मैक्सवेल के इक्वेशन। तो मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन जनरलाइजेशन है वो देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, रियलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, बी की जो वैल्यू रहती, दैट बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2πr इंटू आई सी। देखो दो टाइप के करंट है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट है और कंडक्शन करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं से प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो क्या रहेंगे हमारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो डिस्प्लेसमेंट करंट फिर टेंड्स करता है किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए, तो वहाँ पे फिर जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन करंट। क्लियर? तो मैक्सिमम तौर पे द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। क्लियर? क्या रहता है, कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू
कंडक्शन करंट, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं अभी, सो विल जंप टू मैक्सवेल इक्वेशंस। ध्यान दो, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, डेल क्रॉस ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, एंड डेल डॉट बी इक्वल टू, सबसे पहले ये दो इक्वेशन देखते हैं कौन से, डेल क्रॉस ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। अब बी देखो, बी क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीनिंग इज व्हाट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कर्ल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, क्लियर, सो वी विल गेट फ्लक्स डेंसिटी, और फ्लक्स डेंसिटी मिलने के बाद में हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मिलने के बाद में हम वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद में डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, क्या इंडिकेट करेगा ये, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हम किसी फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डाइवर्जेंस अप्लाई करते हैं तो उसका जो ये रहेगा डाइवर्जेंस, वो कितना रहेगा हमारा, जीरो, क्लियर। दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज रिलेटेड विद द गॉस लॉ। देखो ये जो इक्वेशन है ये इंडिकेट करता है हमारा फैराडेज लॉ, और ये इंडिकेट करता है हमारा गॉसेस लॉ, ठीक है। उसके बाद में हम जब और सॉल्व करेंगे डाइवर्जेंस को, तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, क्या रहता है, डेल डॉट डी, देखो डाइवर्जेंस ऑफ डी, क्लियर, इज इक्वल टू रो वी। रो वी मतलब क्या, चार्ज डेंसिटी, कौन सी भी, इट में भी लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एंड डी इक्वल टू, देखो ये डी क्या इंडिकेट कर रहा है, फील्ड डेंसिटी, डी क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा, फील्ड डेंसिटी, और फील्ड डेंसिटी की जो वैल्यू रहती है इट शुड बी इप्सिलॉन इनटू ई, क्या रहेंगे यहाँ पे, इप्सिलॉन इनटू ई। तो टोटल 4 टाइप के मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास है, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन, आप 4 टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन इप्सिलॉन जीरो, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, क्लियर, डेल क्रॉस ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। देखो अगर आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, देन इज व्हाट, यू विल फाइंड आइदर यू डिफरेंशिएट द फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास है उसका कर्ल ऑपरेटर करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर आपके पास बी है तो डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो रहेगा, याद रखना, डाइवर्जेंस अगर हम बी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आनी चाहिए, तभी हमारा मैक्सवेल इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। एंड डेल क्रॉस ऑफ बी इक्वल टू व्हाट, म्यू जीरो इंटू जे, जे इज व्हाट माई करंट डेंसिटी प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ ई। मतलब क्या, अगर हम कर्ल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं बी के ऊपर, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। दैट इज ऑल मैक्सवेल इक्वेशन, क्लियर, समझ में आया सभी को।
से रिवाइज कर दे, हम फिर से एक बार रिवाइज कर दे क्या क्या पढ़ा हमने। हमने इनिशियली वी डिस्कस वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, देन वी हैव द समरी, ठीक है। देन वी डिस्कस कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम आर देयर। कौन से हमारे पास? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद हमने उसका थोड़ा ओवरव्यू लिया था, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी एम में। अगर ये नहीं आता आपको तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा न्यूमेरिकल का किस तरह से सॉल्व करना है, हाउ टू कन्वर्ट द सिस्टम्स, ओके। देन वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसका डायवर्जेंस, देन कर्ल ऑपरेटर एंड पोटेंशियल। ये 3 टर्म हमने डिस्कस की थी, ठीक है। देन वी हैव स्टडीड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटोस्टैटिक में हमने सबसे क्या क्या बायो-सावर्ट लॉ डिस्कस किया, एम्पियर सर्किट लॉ डिस्कस किया, देन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, एंड लास्टली वी हैव कवर दी विच वन, दैट इज मैक्सवेल इक्वेशन। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।